ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାपर ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତମ ପିଲାମାନେ ବହି ଯଦି ଅଛି ଦେଖିପାରିବ, ଲେଖା ଅଛି କବିତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନରେ କବିତାର କିଛି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଜାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ କବିତାକୁ ବୁଝାଅ ବୋଲି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ବୁଝେଇଥିଲି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଲେଖିକି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ। ତ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ। ଫାଷ୍ଟ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମାନେ ଏହି କବିତାଟି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। କବିତାର ନାଁ ଲେଖିବ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ କବି ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ପାଇକମାନେ ଅତି ବୀର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ କବିଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମହାନ ବୀର ଜାତିର ଦାୟଦ ବା ବଂଶଜ। ତେଣୁ ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ରୂପକ ପବିତ୍ର ଭସ୍ମକୁ ଭସ୍ମ ବା ବିଭୂତି ବା ଭସ୍ମ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ କଥା। ବିଭୂତି ବା ଭସ୍ମକୁ ଆମେ ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ବା ଶରୀରରେ ବୋଳି ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ବା ସାହସୀ ହୋଇ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର ସେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପଦଟା ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଇକମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ ମନେ ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପରିକା ସାହସୀ ହୋଇପାରିବା। ତ ଖରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁକି ଏଉ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ମହାନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ବୀରମାନଙ୍କର ମାଟି ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମାଟିରେ ଦିନେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି। ତ କବି ସେଇଟା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ସେ ଜାତି ପ୍ରେମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ରେକ ହଉ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ମାଟିରୁ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମେ ମାନେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ତମକୁ। ତ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଓ ଅହିଂସାର ପରମ୍ପରା ସହିତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ସମାନ ବା ସରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କବି ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ଯେଉଁ ପଦଟା ରହିଲା, ତ ଆମକୁ କବି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କବି ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାପରେ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ପବିତ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କୋଉ ପଦରେ ଅଛି, ଶେଷ ପଦରେ ଅଛି ନା। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଦେବା। ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ମହିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଅନେକ ବୀର ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି। ଆମର ଏଇ ମାଟିରେ ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ त्याग और आदर्शर प्रतिमूर्ति। से त्याग और आदर्शर प्रतिमूर्ति थिले। किए थिले? गोपबंधु दास। से केवल जड़े नेता नथिले बरं दरिद्र असहाय दुखी मानकर बंधु थिले। तो पढ़िला बेले पिला माने मुझे कही गोपबंधु थिले जड़े जी कि गरीब मानकर बंधु थिले। निज जातिर महत्व रखा से निजर प्राण को मध्य उत्सर्ग कर देथिले। से निज जातिर महत्व रखा निज प्राण को मध्य बलिदान दे देथिले। कविंक मतरे गोपबंधु परी महान पुअर महिमा बा गौरव को कल्पना मध्य करा जाय न पारे। तो कहा सहित तुलना करबा तो दूरर कथा। तो ये कहते तांकर गौरव बा महिमा को कहा सहित कलना करा जाय न पारे। तांकर निस्वार्थपर सेवा और देशप्रेम जुगे जुगे पाई ओडिया जाति पाई गोटे गौरवमय होई रहिबो बा गोटे प्रेरणार उत्स होई रहिबो। तो पिला माने एटा प्रश्न आसले तुम लिखिबो। तापर प्रश्न पिला माने कोन थिला बुझी विचारी लिखिबा। कविता को भल भाबरे पढ़ी निम्न रे दिया जाइतिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। तो प्रथम प्रश्न कोन थिला तमर करे पिला माने ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़ी रे केउ देश और जातिर पूर्व कथा संपर्क रे आलोचना करे जाइछि ओ काहेकि। तो उक्त धाड़ी रे आम प्रिय ओडिशा देश बा ओडिया जातिर पूर्व गौरव कथा कुहा जाइछि। कारण आम ओडिया जातिर इतिहास वीरत्व त्याग संस्कृति एते महान जे ताहा स्मरण कले जणे उत्कलियर मथा आपे आपे नईଯିव। तो पिला माने तमे जेतोल निज ओडिशार गौरव तार संस्कृति जेतोल तमे मन पकेब सेतोल गौरव रे तम मुंड नईଯିव ना नहीं। तो सेटा ही कहि जाइछि गर्व रे आपे आपे मथा नई जाए। तापर प्रश्न कोन अछि ख नंबर अछि बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी केउ पथर पथिक थिले से माने केउ कार्य पई अमर। तो ये लिखा तुम पिला माने बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी अमर पथर पथिक थिले। को पथर पथिक थिले? अमर पथर। कारण से माने देश मातृका को पराधीनर श्रृंखल मुक्त करबा पई इंग्राजी शासनर विरोध रे निर्भीक भाव में लड़ाई करथिले। माने भय न करी से इंग्रेज मान विरोध में लड़ाई करबा पई आगे आस्थिले। किए थिले? बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी। बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोह और चंदन हजूरी 1857 सिपाही विद्रोह रे निजर असाधारण वीरत्व सहित इतिहास रे अमर होई रही जाइछन्ते। तो से कोथिरे जोग देथिले पिला माने सिपाही विद्रोह रे। सिपाही विद्रोह केबे होइथिला? 1857 रे। कुछ पिला जदि प्रश्न आसला तो एटा तुम लिखिबो। तापर प्रश्न अछि से जाति दायद आमे तो सरबे उक्त पदरु तुमे कोन बुझिला पिला माने? एही पदरु मु बुझिली जे आमे समस्ते ओडिसावासी सेही वीर और महान पूर्वपुरुषंकर उत्तराधिकारी। सेमानंकर जेउ स्वाभिमान देशप्रेमर आदर्श से माने रखी जाइछन्ती ताहाको हमर कर्तव्य रूप में आमे ग्रहण करिबा। सेमानंक परि निर्भीक होई जन्मभूमिर सेवा करिबा पाई आमे संकल्पबद्ध होई रहिबा। तो से माने जो कार्य सब कर जाइछन्ती ताहाको आमे संकल्पबद्ध होई रहिबा। तो तापर प्रश्न कोन अछि पिला माने कविता रे देशप्रेम संपर्क रे अनेक कथा उल्लेख कर जाइछि। तुमे देशप्रेम संपर्क रे कोन जान लेख। तो तमे पिला माने लिखिबो देशप्रेम हेउछि निज माटीर प्रति अपार भल पाइबा। निज जन्म माटी प्रति अपार भल पाइबा माने बहुत भल पाइबा। सम्मान निष्ठा देई ताकू बहुत सम्मान सह उच्चरे रखिबा सब स्थान रे ताकू आदरिकी रहिबा आउ एही मानव जीवनर एक श्रेष्ठ गुण जहाकू हमकू ए देशर उन्नति बा कार्य करबा को प्रेरणा दे। प्रेरणार उत्स हेउछन्ती महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस बक्सी जगबंधु भगत सिंह एमाने होछन हम प्रेरणा गोटे गोटे उत्स। से माने देश पाई निज जीवन को बलिदान देछन। तो से मानक आदर्श रे आमे अनुप्राणित होई आमे मध्य हम देश पाई किछि करबा। आज देश प्रेम प्रकृत रे कोन पिला माने सेटा भी जदि पारिबा तमे लिखि दबो। केवल युद्ध करबा देश प्रेम नुहे भल शिक्षा ग्रहण करबा साधुता अवलंबन करबा एवं देशर भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखिबा मध्य प्रकृत देश प्रेम। देश प्रेम आमको एकता और प्रगतिर पथरे आगे नहीं थाए। जड़े दायित्ववान नागरिक भाव में मातृभूमिर सेवा करबा आम समस्तंकर परम कर्तव्य। तो तापर पिला माने हम प्रश्न देखिबा। एही कविताटी एक देशात्मक बोध कविता जहाँ आमको आम राज्य और देश को भल पाइबारे प्रेरणा जागृत कराए। एही कविताटी तुमको क्यों प्रेरणा प्रदान करिथाए सेटा को लिखिबो। एही कविताटी आमको आम पूर्वपुरुषंकर वीरत्व त्याग देशप्रेम संपर्क रे
सूचना प्रदान करने सह आम निज जीवन को किपरि भाव में आम देश प्रेम पर आत्म बलिदान दे पारिबा ताहा आमको सूचई देता है प्रेरणा उत्स होता है। ठीक अच्छे पिलाने तो पिलाने आम तापर देखा अनुमान और कल्पना। बक्सी जगबंधु परी तुमे माने कौन करबा उचित। बक्सी जगबंधु परी हेबापाई मु अद्यम प्रयास करी ता सहित शक्ति और उत्साहर सह सबु बाधा विघ्न को एड़े दे मो देश प्रेम पाई मु आगे जीवी निज मातृभाषार सेवा करने मु आगे जीवी। तो तुम यहाँ पिला लिख तापर प्रश्न अच्छी खरे निजक पाइक पुओ भावी देश सेवा कौन कर तुमे माने। तो तुम मैंने लिख निजक पाइक पुओ भावी निज शरीर शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत मु लड़े करी आम देश मातृका को शत्रु मान कबल रक्षा करी। तापर प्रश्न अच्छी पिला माने केउ कार्य जड़े व्यक्ति को अमर करे। भल कार्य ही जड़े व्यक्ति को अमर करिथाए। तापर प्रश्न पिला माने घ जदि तुमे तोषाली प्रांत थांत तेबे सही रक्त नई को देखिबा परे तुम मनरे क्यों भाव जागृत होता। पिला माने जो तोषाली प्रांत कथा मन अच्छी कलिंगर राजधानी जो तोषाली थिला से प्रांत जदि तमे से रक्त नदी पाखे था तो तुम मन में क्यों भावना जागृत होता। तो से तुम मैंने लिख जदि मु तोषाली प्रांत थांती तेबे सही रक्त नदी को देखिबा परे मो मनरे अशोक सम्राट परी भावना जागृत होता। तो तांकर को भावना जागृत होता खंडा तलवार युद्ध प्रकृत जय नुहे हृदयर जय ही प्रकृत जय। माने खंडा तलवार आम जो युद्ध कर प्रकृत जय हो न था मन हृदयर जो जय करवाटा होता है हृदयर ही जय ही प्रकृत जय ये मन ही माने आम मान मन में जागृत होता है। लिखा अच्छी तापर प्रश्न अच्छी 9 नंबर जदि तुम्हें स्वाधीनता संग्रामी होता तेबे तुम्हें केउ कार्य प्रति अधिक गुरुत्व देता। तो यार उत्तर पिला माने प्राय समान रहिबो। जदि मु स्वाधीनता संग्रामी होता निज मातृभूमि को विदेशी मानक कबलरू रक्षा करिया पई यथा संभव चेष्टा करिथांती मो निज जाति को स्वाधीन करिया पई चेष्टा करिथांती। तो तापर पिला माने आमे लिखिबा कविता रचना। प्रथम दर कविता दिया हिची से जो कवितार गोटे पदडे जाति पाई दिने बाळुत धर्मा झासीतिला प्राण सागर जळे लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाय नर धरणी तळे। पद्यांशटीर शेष शब्द को ध्यान रे रख सागर जळे और धरणी तळे रे जळे और तळे पदर व्यवहार करा जायछि। एही दुई पदर शेष ध्वनि एकापरि जळे एवं तळे दीटांग समान परिका सुबुछि। तो एही विशेषता को ओडिया भाषा रे पूर्ण मित्राक्षर कहा जाय। एबे तळे दे जेथिबा प्रश्न गुडिकर सांग मानक सह आलोचना करी आमे लिखिबा। तो आमे प्रथम प्रश्न कोन अछि पिला माने करे पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता लिखिले क्यों विशेष प्रभाव पड़ता है। तो तुम मैंने उत्तर लिखिबा पूर्ण मित्राक्षर को नहीं कविता लिखिले जतिपात ठीक होता है एवं सुनिबा को श्रुति मधुर होता है। तो तापर पिला माने अछि कविता को प्रभावशाली करिबा पई आउ केउ केउ भाव प्रयोग करा जाय थाए। तो हमर जो कविता रही आस उत्कल्य तो सेथरे कोन व्यवहार होता है केउ शैली बा केउ भाव रही है। तो कविता को प्रभावशाली करिबा पई कवितार प्रत्येक पदरे प्रथम एवं तृतीय धाड़ी प्रथम धाड़ीटा एवं तृतीय धाड़ीटा अक्षर संख्या प्रथम और तृतीय धाड़ीर अक्षर संख्या होची 12 एवं तृतीय माने चतुर्थ आउ द्वितीय आउ चतुर्थ पदर अक्षर संख्या होची 11 एटा होची तार भाव। तो तापरे पिला माने अछि भाषा विचार रे तमर दिया जायछि शब्द सह शब्द जोड़ तुमे सांग मानक सह मिसी आलोचना करी तले दिया जाइथिबा खाली स्थान रे धरणीर समार्थबोधक शब्द गुड़िक लेख। समार्थबोधक शब्द माने कौन पिला माने प्रतिशब्द माने आमे अछि धरणी को आमे कौन कौन बोली लिखिबा। धरणी को आमे कौन कौन कहिबा पृथ्वी धरा वसुधा वसुमती मेदिनी अबनी मही आउटे कौन वसुंधरा पृथ्वीर जदि प्रतिशब्द पड़े धरणीर प्रतिशब्द पड़े तुम यही शब्द गुड़िक लिख धरणीर।
ठीक अच्छे। तापरे तुमर खरे अच्छी खरे पिला माने अच्छी माने एठी तुमको दिया है निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गद्य रूप लेख। तो जेपरी पूर्व पूर्व तो दिया है गरबे अर्थात कौन गर्बे, सरबे सर्बे, रकत रक्त, आदर्श आदर्श, तर्पण तर्पण है। तापर दिया है पिला माने काल बा समय विचार, कालर विचार, काल माने कौन समयर विचार कर। ग दिया है पाइक पुअर गारिमा जाथिला 1 नंबर अच्छी। तले पिला माने कौन लिखा है ऊपर निम्नलिखित पद गुड़िकर अतीत कालर सूचना प्रदान करा जायछि। अतीत काल माने अतीत जहाँ थिला सेटा ही सूचना प्रदान करा जायछि। तुमे माने एई पद्यांशटी को नै वर्तमान और भविष्यत काल रे परिणत कर। माने गोटे वाक्य तुमको दिया है सेटा अतीत रे दिया जायछि तो तुमे ताको वर्तमान और भविष्यत रे व्यवहार करबो। तो एठी अछि पिला कोन पिला माने पाइक पुअर गारिमा जाथिला, पाइक पुअर गारिमा जा थिला, थिलाटा होछि अतीत तो ताहिटा कोन हबो वर्तमान और भविष्यत रे। पाइक पुअर गारिमा जा अछि, अछि होछि वर्तमान आउ पाइक पुअर गारिमा जा थिबो, थिबो माने भविष्यत रे। ठीक अछि। तापरे आ गोटे कोन अछि तोसाळी प्रांत रे दिने बही थिला, तोसाळी प्रांत रे दिने बही थिला, बही थिला अर्थ अतीत तो वर्तमान सेटा कोन हबो तोसाळी प्रांत रे दिने बही अछि, अछि माने एना वर्तमान तो बहु थिबो माने तोसाळी प्रांत रे दिने बहु थिबो माने आगु माने भविष्यत काल। ठीक अछि। तो आमे एथिरो आमे शेष प्रश्न देखिबा कोन अछि समान अर्थ बुझौथिबा शब्द माने हमर ए अध्यायर शेष प्रश्न समान अर्थ बुझौथिबा शब्द माने प्रतिशब्द। तो एठी पिला माने तमरो देछि पुअर प्रतिशब्द माने निम्न रे किछिटा शब्द देछि तमे सेमानक मध्यरु बाछि कि लिखिबो कि पुअर प्रतिशब्द कोन। तो पुअर प्रतिशब्द पिला माने कोन पुत्र बा सुत। तापरे नईर प्रतिशब्द कोन तटिनी स्रोतस्विनी। ठीक अछि। आउ सागर, सागरर प्रतिशब्द कोन सिंधु पारावार। आउ गोटे अछि कोन पिला माने सैनिक, सैनिकर समार्थबोधक शब्द बा तार प्रतिशब्द जवान बा सिपाही। तो पिला माने एठी तमरो प्रश्न उत्तर भाग समाप्त होईछि। तो जदि कोठी ठीक डाउट रहला कि कोटा बुझी न पारलो तो मते कमेंट सेक्शन में जणैबो, मु तुम मानकु जणैबी। तो जदि पिला माने नुआ कि आछो त हम A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करबो, लाइक करबो आ संग मानसो शेयर करबो।